اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 14. تلاوت کردہ آیت قرآنی کا ترجمہ تبین القرآن سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ ان کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آدھا گزر چکا. آج 15 تاریخ ہے اور بڑی خاموشی اور تیزی کے ساتھ یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے. مومنوں کے لیے یہ وقت بہت ہی سخت اور کڑی آزمائش والا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے انسان اپنے گھروں میں قید ہیں. یقیناً لاک ڈاؤن میں پھنسے رہنا، گھروں میں محدود ہو جانا، دین کو سمجھنے، دین کو سیکھنے اور عبادت اور بندگی میں زیادہ وقت لگانے کا بڑا اچھا موقع ملا ہے. ویسے ہر مومن بندہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو پہلے سے زیادہ عبادتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم کر کے لاک ڈاؤن کے ذریعے گھروں میں محدود کر دیا، اور اس بات کے لیے ایک بہترین موقع، سنہری موقع، گولڈن چانس دیا کہ اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، اس ملے ہوئے موقع کو نہ گنوائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مصروف ہو جائیں. یقیناً یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن، یہ جو سنگین حالات ہے، یہ ہمیں پورے طور پر سکھا دیے ہیں، ہمیں مکمل طور پر بتا دیے ہیں نیکی کو اختیار کرنا اور گناہ کو چھوڑنا آسان ہے. لاک ڈاؤن میں انسان چاہتے ہوئے بھی کئی چیزوں کو، کئی باتوں کو اختیار نہیں کر سک رہا ہے، اور ملے ہوئے موقع سے کئی چیزوں کو اختیار بھی کر رہا ہے. تو نیکیوں کو اختیار کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا آسان کیسے ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہے لاک ڈاؤن، یہ سکھا رہا ہے لاک ڈاؤن. اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن یہ بات بھی بطور خاص سکھا رہا ہے کہ نو ایکسکیوزز، کوئی بہانہ بازی نہیں. بہانے جتنے ہیں دنیا میں مصروف ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے الگ تھلگ کر کے بتا دیا کہ تمہارے بہانے ایک طرف دھرے کے دھرے رہ گئے اور ہر طرف میری قدرت کا بول بالا ہے. سامعین محترم، یقیناً یہ لاک ڈاؤن کے دوران آئے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے مقدس موقع پر ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ پورا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہی رینیول کے لیے آتا ہے، ریفریش کرنے کے لیے آتا ہے کہ مومن بندہ 11 مہینوں میں غفلتوں کی وجہ سے مصروفیتوں کا بہانہ کرتے ہوئے عبادتوں سے دور رہتا ہے. تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ انہی مصروفیتوں کے رہتے ہوئے، انہی ایکٹیویٹیز کے رہتے ہوئے، انہی تجارتوں کے رہتے ہوئے، انہی بزنس میں مصروف رہتے ہوئے جب مومن بندہ رمضان المبارک میں آتا ہے تو نہ بزنس رکاوٹ بنتی ہے، نہ جاب رکاوٹ بنتا ہے، نہ تجارت رکاوٹ بنتی ہے، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. تو اس حساب سے بہانے بازی
इंसान की फितरत में है और इंसान इस फितरी कमज़ोरी से हमेशा कोशिश ये करता है कि बहाना बाजी करके बचा रहे। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारी सुधार के लिए आता है, रिफ़्रेश करने के लिए आता है। किसको रिफ़्रेश करने के लिए आता है? हमारे ईमान और अक़ीदे को, हमारी बिलीफ्स को। और किसको रिफ़्रेश करने के लिए आता है? आमाल सालिहा, जो हम लापरवाही से छोड़ चुके थे, ये रिन्यू कराने के लिए आता है, रिन्यूअल कराने के लिए आता है। तक़वा परहेज़गारी यानी डरना, बच बचाकर ज़िंदगी गुजारना, इसे जब हम छोड़ते हैं तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आकर बताता है कि जो हलाल खाना पीना है उससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रुकते हैं, तो ये रिफ़्रेश कराता है तक़वा और परहेज़गारी को भी। सामीन मोहतरम, जब हम किसी के पास अपनी कोई बड़ी चीज़ अमानत रखाते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होती है, हमारे एहसासात क्या होते हैं, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते ये हैं कि जिसके पास रखा रहे हैं वो दयानतदार है, ट्रस्ट किया जा सकता है, हमारी अमानत की वो पूरी पूरी हिफाजत करेगा, और जब हम मांगेंगे तो वो बग़ैर किसी बहाने के हमें जो चीज़ रखाई गई थी जैसी थी वैसी वो वापस कर देगा। लेकिन इसके बावजूद एक अनजान सा खौफ भी होता है हम इंसानों का कि क्या कहीं वो हमारी अमानत में ख़यानत तो नहीं कर देगा, हमारी अमानत को मिसयूज़ तो नहीं कर देगा, हमारी अमानत में गबन तो नहीं कर देगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग आती है, लेकिन गालिब ख्याल यही रहता है कि हम जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं उसी के पास अपनी अमानत रखाने का हम इरादा कर रहे हैं। वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जो ज़िंदगी दिया है अमानतन है, अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पर दी है, और अल्लाह तबारक व तआला भी इस ज़िंदगी को अपने इल्म के मुताबिक जब चाहेगा वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी चाहता है कि मैं ये जो ज़िंदगी अपने बंदों को दिया हूँ उस अमानत में ख़यानत ना हो, मिलावट ना हो, गबन ना हो, चीटिंग ना हो, ज़िंदगी का हक़ अदा हो बंदगी के ज़रिए, इबादत और आमाल सालिहा के ज़रिए ज़िंदगी का हक़ अदा करता रहे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर परिंदे को पर दिया है, पंख दिया है, ताकि वो उड़े जहाँ चाहे जाए। लेकिन लिमिटेशन अल्लाह ने पर देने के बावजूद भी रख दिए हैं, हुदूद मुकर्रर कर दिए हैं, हद मुकर्रर कर दिए हैं। जो परिंदा जिस लेवल तक उड़ना है उतना ही उड़ेगा, ना उसके ऊपर जाएगा, और जो परिंदा जहाँ तक उड़ने वाला है वो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठेगा, वरना काहिल होगा और हलाक हो जाएगा। ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। अल्लाह ने उसकी तख्लीक जितना उड़ने के लिए की है वो परिंदा अपने परों को इस्तेमाल करते हुए उतना ही उड़ेगा। जो अल्लाह ताला ने उसकी एक हद, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री जो बना दी है उसी के अंदर रहेगा। इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हक बातिल, नेक बद, अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ें बता दिए। सफ़ेद क्या है, काला क्या है, सवाब क्या है, अजाब क्या है, नेकी किसे कहते हैं, बदी किसे कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से इंसान जैसी मखलूक को इख्तियार की सिफत दी है, कमांड की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी नेमत इख्तियार की देने के बावजूद इंसान के लिए भी लिमिटेशन मुकर्रर कर दिए, बाउंड्रीज मुकर्रर कर दिए, हद मुकर्रर हो गई कि इसी हद के अंदर रहना, इस हद के बाहर नहीं जाना। लिहाजा अमानतन दी गई ज़िंदगी के भी हुदूद, बाउंड्रीज, रूल्स और रेगुलेशंस, अहकामात, फरमूदात की सूरत में, शरीयत मुहम्मदिया की सूरत में अल्लाह ताला ने मुतय्यन, मुकर्रर और फिक्स कर दिए हैं। ना आदमी इससे पीछे हटे ना उससे आगे बढ़े। पीछे हटने में भी और आगे बढ़ने में भी नुकसान ही नुकसान है। और अल्लाह की जो अमानत है ज़िंदगी, गोया ख़यानत करना करार पाता है। लिहाजा हर इंसान का हर अमल एक नतीजे वाला है, एक रिज़ल्ट वाला है और हद वाला है।
इंसान का कोई भी अमल हद वाला भी होगा और बेहद्दा भी होगा। हद वाला होगा, लिमिटेशन में होगा तो फायदा पहुंचाएगा, बेहद्दा होगा, लिमिट क्रॉस करने वाला होगा तो फिर वो नुकसान, दुनिया और आखिरत हर दो जगह। यानी मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का नाम, खुश करने का नाम दीन है, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए अल्लाह को नाराज़ करने का नाम दुनिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दी गई अमानतन ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं, जो फरामीन दिए हैं, जो अहकामात दिए हैं, उसकी पैरवी इताअत करने का नाम ही दीन है, और उन हुदूद की नाफरमानी करने का नाम दुनिया है। तो मोमिन बंदों का काम यह है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस मौके पर इस बात का जायज़ा ले कि लॉकडाउन के दौरान क्या हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो गोल्डन चांस दिया है उससे हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर भरपूर अंदाज में गफलत में पड़े हैं। इसके लिए अपने ईमान को टटोलना पड़ेगा। एक हदीस शरीफ आपके सामने रखने की सआदत हासिल करता हूँ। वनादा रजुलन, एक शख्स आया हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, और उसने फरियाद की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम अलैक, मल ईमान, ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। सवाल शॉर्ट, मुख्तसर, थोड़ा, मल ईमान, ईमान क्या है। जवाब भी बड़ा शॉर्ट, जवाब भी बड़ा मुख्तसर, लेकिन समंदरों को कूजे में भर दिया गया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जवाबन कि मल ईमान, ईमान क्या है। जवाब फरमाए अल इखलास, प्योरिटी, खुलूस, मोहब्बत, साफ शफाफ। यानी एक ही लफ्ज में पूरी बातों का जवाब मिल गया। अब एक और हदीस शरीफ आपके सामने रखता हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में, वो भी लॉकडाउन के सिचुएशन में, जबकि घरों में नमाज़ें हो रही है, और अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन की दुआओं को, तमाम महदवी मर्द ख़वातीन, छोटे बड़े, सबकी दुआओं को सुनते हुए रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी इबादत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल रात के फ़र्ज़ दुगाने की अदायगी के लिए, इज्तिमाई अदायगी के लिए अपनी खुदरत कामिला का कोई ऐसा करिश्मा, ऐसा मोजिज़ा दिखा दे कि दुनिया दंग हो जाए कि लॉकडाउन के बावजूद भी अल्लाह ताला मेहरबान हो गया, और फ़र्ज़ दुगाने लैलतुल क़द्र की अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने सिचुएशन को बदल दिया। ये उसकी खुदरत से कोई बात बाईद नहीं, दूर नहीं, लेकिन घिगाना, पसारना, दुआ करना हमारा काम है। ये जो अगली हदीस सुना रहा हूँ, उमूमन लोग सूरतों पर मरते हैं, लिबासों पर मरते हैं, किसी के स्मार्ट होने पर समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो बात पते की बताई जा रही है वो हमारे लिए बड़ी सबक आज़मा है। खातिमुन नबिय्यीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व ताला ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है, ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, वलाकिन यंजुरु इला खुलूबिकुम, अल्लाह अगर देखता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खुलूब को देखता है। दिल पाक ना हो तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। तो दिल को पाक रखना है। यही वजह है कि बर्तन को बाहर नहीं बल्कि अंदर ज़्यादा साफ़ किया जाता है, अंदर ज़्यादा धोया जाता है, अंदर ज़्यादा चमकाया जाता है। तो ये जो बर्तन है इंसान का, इस बर्तन का अंदर ये क़ल्ब है, ये दिल है, और इस दिल में खुदा को बसाना चाहिए। दो चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती, आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते, खुदा की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में नहीं बस सकते, शैतान और खुदा एक दिल में नहीं बस सकते। तो अल्लाह को बसाना है तो हर हाल रब समाल, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी को, अल्लाह ताला की दी गई अमानतन इस
ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए हुदूद के मुताबिक, उसके फरामीन के मुताबिक, उसके बाउंड्रीज़ जो खींच दिए गए हैं उस बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए रज़ामंदी के काम करते रहें तो यकीनन अल्लाह ताला हम पर फज़ल करता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम महदवियों के दिल के गहराइयों से निकलने वाली लैलतुल क़द्र की बड़ी नमाज के लिए जो दुआ कर रहे हैं, ए पाक परवरदिगार आलम तो अपने फ़ज़ल व करम से रसूल मेहदी के सदक़े से इस दुआ को कबूल फरमा ले और ऐसा करिश्मा, ऐसा मोजिज़ा दिखा दे कि जो अपनी अपनी आबादियों में इज्तिमाई तौर पर अपने अपने मुर्शिदीन के पीछे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर जैसी अजीम रात की इबादतें पुरसुकून और पुरअमन अंदाज में अदा करने के हालात और माहौल पैदा फरमा दे और साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की सारी इबादतों, रहमतों, बरकतों को इस तरह से हम हासिल करें कि अगले 11 महीनों में तेरे हुदूद को, तेरे बाउंड्रीज़ को पूरे खातिर में रखते हुए पूरी समझदारी, होशमंदी और ईमानदारी के साथ इख्तियार करते हुए ना पीछे हटे ना आगे बढ़ें, बस तेरे हुदूद में रहते हुए तेरी रज़ामंदी के काम करते रहें ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब और कामरान हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।